Again, another concept is electric field. Let's see this. What is that? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े थे, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे अभी. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, intensity. Clear? That is what electric field E. It's a vector quantity. तो मुझे बोलो ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या डेफिनेशन था? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था? दिस इज द रीजन और स्पेस अराउंड विच द इन्फ्लुएंस ऑफ द मास कैन बी फेल्ट. यही था ना ग्रेविटेशनल फील्ड का. एक मास लिया, उसका जो इन्फ्लुएंस है, कहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है, निकालेंगे, एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. दैट वाज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. कहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. सही हुआ कि नहीं? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मास को हटा के एक चार्ज लेना है मुझे, क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दिस इज द रीजन. इफ आई एम टेकिंग दिस क्यू चार्ज, दिस इज द रीजन और द स्पेस, REGI1, रीजन और द स्पेस around which the influence of this charge can be felt. The influence of the charge can be felt. This is what the electric field concept. समझ में? लिखो electric field. This is the region or space. Electric field. This is the region or space. Electric field. This is the region or space. This is the region or space around which. This is the region or space around which the influence of the charge can be felt. This is the region or space around which the influence of the charge can be felt. The influence of the charge can be felt. This is the region or space around which the influence of the charge can be felt. F-E-L-T, felt. Influence of the charge can be felt. Understand this? So you can say that this is the region of influence. तो ये सब पॉइंट है, दैट पॉइंट बोलोगे. ये सब पॉइंट क्या है? दैट पॉइंट से. दैट पॉइंट्स मीन पॉइंट, दैट पॉइंट मीन्स व्हाट? द पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस. जैसे अगर क्वांटिटेटिवली मैं डिफाइन करूं ग्रेविटेशनल फील्ड को, कैसे डिफाइन किया था? दिस इज द पॉइंट, or this is the what points whenever I am taking a unit mass, then force experienced on a unit mass when placed at that point. अरे ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन किए थे? ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ यूनिट मास व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. एट दैट पॉइंट मींस द पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस. m0 को मैं अगर यहीं पे रखूंगा, वॉट एवर मे बी द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन दैट मास, फ्रॉम दैट रीजन एक्चुअली, फ्रॉम दैट पॉइंट एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट. तो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दिस इज द पॉइंट. और वेन एवर m0 q0, m0 को हटा के सर q0 लिखोगे. हेलो, अरे वॉइस कट रहा है. अभी देखो सही हुआ वॉइस. हेलो, हेलो, अरे वॉइस सही हुआ. यस सर. ओके. तो Yes, sir. m0 को हटा के q0 में लिखूंगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा? सर इलेक्ट्रिक, नाउ ब्रेकिंग. yes, this is the force experienced on a unit positive test charge. This is the force experienced on a unit positive test charge when placed at that point. At that point means what? At that point means the point of influence. At that point means the point of influence. So what is that electric field? Electric field is defined as the force experienced on a unit positive test charge. Unit positive test charge when placed at that point. At that point means what? The point of influence. These are known as at that point. At that point means the point of what? Influence. Understand this? समझ में है definition? Sir, only at that point will At that point, at that feel the point means influence. yes, at that point means these are the point. At that point, at that point means the influence point. Sir, inside the Inside point. not, inside the point not. जहां से शुरू होगा तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वो पॉइंट को बोलोगे एट दैट पॉइंट. अगर थोड़ा सा इधर आ जाए q0, तो देर विल बी नो व्हाट इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फील्ड. देयरफॉर ये पॉइंट सब एट दैट पॉइंट नहीं होगा. Sir, towards the outside or inside? Inside, inside this one, just exactly here, exactly here. Understand this or not?
Radius will remain same. Yes, definitely Udit. Sir, Yes. inside the sphere, it हाँ will have no electric influence. yes, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस विल बी देयर. अरे जैसे Ins- जैसे अंदर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा. अरे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड yes, sir. इन्फ्लुएंस. बट एग्जैक्टली कहाँ से शुरू होगा? Yes, sir. जहाँ से शुरू होगा दैट इज द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. अरे जहां से तुम्हारा शुरू हो रहा है दैट इज द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. समझ में आया कि नहीं? अरे यहीं से शुरू नहीं हो रहा है. मेरा जो पॉइंट में दिखा रहा हूँ यहीं तो इसके ऊपर कोई फोर्स मतलब व्हाट ए फोर्स एक्सपीरियंस होगा बट यू कैन नॉट रियलाइज दिस फोर्स. therefore here electric field region is not there. थोड़ा सा मैं इधर लेता हूँ तो immediately I am getting that force. अरे understand this or not? therefore electric field region Yes, sir. starts from these points. Electric field region starts from these points. So these points are known as point of influence. And that point at that point means the point of influence. समझ में है? अरे समझ में है? Yes, तो sir. Yes. जैसे जैसे अंदर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा. मतलब एक स्पेरिकल की तरह आएगा. रेडियस सभी में सेम ही आएगा. रेडियस विल बी सेम ईयर. समझ में आया उदित? यस उदित, रेडियस विल बी सेम. इज इट क्लियर? तो क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करोगे? लिखो quantitatively electric field can be written as quantitatively electric field can be written as E is equal F by Q naught, where Q naught is the unit positive test charge. Where Q naught is unit positive test charge. इसका significant बहुत ज़्यादा है. क्या बाद में देखेंगे. Write down where Q naught is the E is equal F by Q naught, where Q naught is the Sir, from the beginning. yes E is equal. Write down quantitatively electric field can be written as quantitatively electric field can be written as E is equal F by Q naught. F by Q naught, where Q naught or Q0, Q0 भी बोल सकते हो या फिर Q naught भी बोल सकते हो. Q naught is the unit positive test charge. बताया था ये unit positive test charge. Unit positive what? Test charge. Q naught is a unit positive test charge. Is that clear? I understand this. Now definition इसका लिखो. Write on the definition. Unit positive test charge. So Sir, not is same as 0. yes yes Q naught is same as 0. Not means 0. Yes. Clear. Q naught is or Q naught or Q0 is known as unit positive test charge. हो गया? लिखो definition लिखो. Electric field is defined as electric field is defined as electric field is defined as the force experienced the force experienced the force experienced on a unit positive test charge the force experienced on a unit positive test charge when placed at that point. Force experienced on a unit positive test charge force experienced on a unit positive test charge when placed at that point. When placed at that point. At that point means what? Point of influence. Understand this? When placed at that point. When placed at that point. At that point means what? The point of influence. Huh? When placed at Sir, that if point. R increases, there will be no electric field. Electric field is there. No need to draw the diagram. Electric field is there, but influence will be not there. अरे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन्फ्लुएंस देखो. मैंने ये देखो ये साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे प्लेस कर रहा हूँ. यहीं पे एक नॉर्थ पोल में लेके आ रहा हूँ. ये दोनों के बीच में व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स होगा बट एक्सपीरियंस नहीं होगा. हुआ कि नहीं? अगर मैं थोड़ा सा आगे ये मैग्नेट को लेके यहीं पे आता हूँ तो इमीडिएटली यू कैन फील द रिपल्सिव फोर्स. यू कैन फील. समझ में है कि नहीं? यू कैन फील द रिपल्सिव फोर्स. मतलब इसका जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड रीजन है इसके लिए तो यहीं से शुरुआत होता है. मीन्स यू कैन एक्सपीरियंस द फोर्स. अरे समझ में आ रहा है स्पंदन? Yes, sir, but magnetic field is there. There but influence will be not there. Clear?
बट एग्जैक्टली ये पॉइंट में क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, therefore these points are known as at that point, मतलब यहीं से इन्फ्लुएंस शुरू हो रहा है, यहीं से शुरू हो रहा है, अंदर तक जाएगा। समझ में है कि नहीं? समझ में? इन्फ्लुएंस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? हेलो, Yes, sir. इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो राइट डाउन, इट्स Yes, ए sir. वेक्टर क्वांटिटी, राइट डाउन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देखो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, so what is its unit? Write down, it is a vector quantity, its unit in SI is what? Unit in SI is what? Newton per coulomb, and in CGS it is what? Dyne per what? Start coulomb, dyne per start coulomb. And what is its dimension? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन के लिए m1 l1 t माइनस टू, कूलम के लिए a1 t1, तो मिल रहा है m1 l1 t माइनस थ्री a माइनस वन, m1 l1 t minus 3 a minus 1. This is what the dimension of electric field. This is what the dimension of electric field. Dimension is m1 l1 t minus 3, that is a minus 1. लिखा? अरे डायमेंशन Yes. लिखे? ओके, सभी लिख दिए? हेलो, सभी लिख दिए? Yes, sir. ओके, आगे देखो, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग लिखेंगे, नोट में लिखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नोट नंबर 1, if q is less than 0 means what type of charge is this one? अरे q is less than 0, what type of charge is this one? Negative charge. Repulsive. Repulsive. नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, Attack. चार्ज इज नो। अरे Q1 Q2 लेस देन 0 मतलब अट्रैक्टिव है। मैं बोल रहा हूँ Q is less than 0 means what type of charge is this one? Negative charge. Q is less than 0 means charge is negative. Then what will happen? Look here, E is equal F by Q. तो मेरा Q क्या होगा? नेगेटिव होगा ना? अरे इंस्टेड ऑफ Q I can write what? Negative minus Q. That means F equal to Yes, sir. minus QE. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ? What? If the charge is negative, if the movable charge is negative, ये movable charge है, मतलब छोटा सा चार्ज है माइनस क्यू। If the movable charge is negative, the direction of force and electric field are opposite to each other. समझ में आ रहा है? If the movable charge is negative, then the direction of force and electric field are opposite to each other. Is that clear? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. लिखो, राइट डाउन, पूरा लिखो इसको, लिखो इसको। Yes, sir. हो गया? लिखो, इफ द मूवेबल चार्ज, इफ द मूवेबल चार्ज, जो Q0 हम बोल रहे थे टेस्ट चार्ज को, Q0 टेस्ट चार्ज को मूवेबल चार्ज भी बोलते हैं। लिखो, इफ द मूवेबल चार्ज इज नेगेटिव, if the movable charge is negative, then the direction of electrostatic force and field are opposite to each other. Then the direction of electrostatic force and field, electrostatic force and field are opposite to each other, are opposite to each other, are opposite to each other. Understand this? अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? नंबर 2, इफ Q इज ग्रेटर देन 0 मीन्स Q इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? देन E इज इक्वल F बाय व्हाट इज दैट? Q. Q इज पॉजिटिव मीन्स F इक्वल टू QE, मीन्स सेम पे क्या होगा? फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस आर सेम। राइट डाउन,
electric field and electrostatic force both are along the same direction because they're positive. Write down. लिखो. लिख दिए. Yes. लिखो. If the movable charge is positive, if the movable charge is positive, if the movable charge is positive, then the direction of electrostatic force and electric field are same. Then the direction of Sir, voice break. yes, write down. If the movable charge, now it is audible. Hello. And now it is audible. Yes, sir. Okay, write down. If the movable charge is positive, if the movable charge is positive, then the direction of electrostatic force and field are same. Then the direction of electrostatic force and field are same. Electrostatic force and field are same. Is it clear? अरे समझ में है? Yes, sir. समझ में है? ओके. नाउ इसको लेके हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो ये कॉन्सेप्ट को लेके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. कैसे? तो ये आर डिस्टेंस में दो चार्ज है. एक है प्लस क्यू, दिस इज व्हाट प्लस क्यू, एंड दिस इज व्हाट मूवेबल चार्ज इज प्लस क्यू. एंड फिर दूसरा डिस्टेंस में और एक है, मैं टोटल चार्ज डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ एंड आई हैव टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल द केसेस. देखो फर्स्ट में प्लस क्यू है, दूसरे में माइनस क्यू एंड ये प्लस क्यू है, तीसरे में क्या है, और मैं ऐसे लिखूंगा तो बेटर होगा, प्लस क्यू इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू लिखूंगा तो समझ में आएगा बेटर. माइनस क्यू है, दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज व्हाट माइनस क्यू. तो ये चारों केस में मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. अरे सभी सुन रहे हो? ये सो गए? हेलो Yes, sir. Yes. सुन रहे हो? यस सर सुन Okay. रहे. मैं सोचा था Yes, सो गए sir. सभी. ओके चलो ठीक है. अरे देवी प्रसाद सुन रहे हो? हेलो. Yes, sir. ओके. अरे अच्छा नींद आ रहा है शायद नहीं है. ओके देखो तो ये सभी में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. हाउ टू फाइंड आउट? ये मेरा सोर्स चार्ज है, ये प्लस क्यू जो कैपिटल क्यू देख रहे हो ये सब सोर्स चार्ज है, मतलब बिग चार्ज है, सोर्स SOURC सोर्स चार्ज है. एंड ये सब मूवेबल चार्ज है जो क्यू नॉट मैंने लिया था, ये सब मूवेबल चार्ज है. अभी देखो सर वॉइस ब्रेक हो रहा वॉइस है. ब्रेक हो रहे. अरे आज फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहे. अभी Yes, देखो. sir. अरे अभी देखो सही हुआ. हेलो. बीच में एक बार Yes, sir. सर ब्रेक हो रहा ब्रेक हो रहा है. अच्छा Yes, sir. For 1 second, 1 to. 1 सेकेंड. आज नेटवर्क थोड़ा लो है शायद. अरे क्या फाइबर भी काम नहीं कर रहा है यहीं पे. ओके हो गया. अभी हुआ. हेलो सुनाई दिया? अरे अच्छी तरह सुनाई है. दिया? Yes, sir. ओके देखो. यस सर. Yes, sir. Yes, Okay. sir. यस सर. ओके देखो ये सब सोर्स चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू देख रहे हो, ये सब मूवेबल चार्ज है. हुआ कि नहीं? तो ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया ये मूवेबल चार्ज है क्यू. अगर मूवेबल चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट. इफ मूवेबल चार्ज इज पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड आर सेम. तो अभी देखो इसमें ये पहले ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूंगा. नाउ फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू किस तरफ जाएगा? बोलो ज्योतिर्मय बोलो. Repulsive. रिपल्सिव किस तरफ जाएगा? लेफ्ट या राइट? Right. Right. राइट जाएगा. दिस इज नहीं व्हाट द सर. फोर्स. हाँ right. राइट जाएगा. दिस इज व्हाट द फोर्स. समझ में है कि नहीं?
as the movable charge is positive, as the movable charge is positive, the direction of field and force are same. So electric field due to plus q charge, electric field due to plus q charge is what? Same as force आएगा. Therefore electric field will be same as force. किसको समझ में नहीं आया बोलो. अरे if the movable charge is positive, ये point लिखवाया था. If the movable charge is positive, then the direction of force and field are same. E is equal F by Q. ये movable charge positive है. Electric field किसका निकाल रहे हो? Source charge का निकाल रहे हो with the help of what? Movable charge. तो इसमें क्या हो रहा है? This is what the source charge. This is what the movable charge. As the movable charge is positive, the direction of force and electric field are same. Electric field किसका निकाल रहे हो? ये source charge का निकाल रहे हो. And that is what along this line you are going to get. सेकेंड केस में प्लस क्यू, अगर मूवेबल चार्ज माइनस क्यू होगा तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू. बोलो ज्योतिर्मय बोलो. Sir, to फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू किधर आएगा? हेलो, अरे Left. किधर आएगा? लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट. इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा. दिस इज व्हाट द फोर्स. समझ में? अट्रैक्टिव फोर्स. बीइंग दिस इज माइनस क्यू, देखो मूवेबल चार्ज नेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? अरे अगर मूवेबल चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का Right. डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू Opposite. चार्ज इज व्हाट? राइट. दिस इज व्हाट ई. समझ में आया? नाउ माइनस क्यू के लिए निकालूंगा. नाउ फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा? ये भी अट्रैक्टिव इन नेचर होगा. एफ एज द मूवेबल चार्ज इज प्लस क्यू, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आल्सो सेम, मतलब सेम एज फोर्स आएगा. फील्ड इस तरफ आएगा. हुआ? नाउ what is the electrostatic force between minus q and minus q? अरे क्या आएगा? माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आवे जाएगा. This is what the force. As the movable Because charge, as the movable charge is negative, the electric field direction is opposite to the force. Opposite to the force means like this. अरे समझ में आया कि नहीं? इसको समझ में नहीं आया बोलो. बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे इसको बहुत बार यूज करेंगे. किसको समझ में नहीं आया बोलो. अरे सभी को समझ में आया? हेलो. Sir, negative, if the plus Q is negative, प्लस क्यू Sir, इंस्टेड ऑफ electro- नेगेटिव यू सी दिस इज नेगेटिव. electrostatic, फोर्स एंड फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर. अरे बीइंग दिस इज माइनस वन, फोर्स इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा. yes, sir, If force, movable- हाँ, बोलो. electrostatic force I understand. हाँ Yes, sir, but minus Q, if minus Q is negative, electric field is always towards left. हाँ अभी अभी निकालेंगे इसको. capital उसको Q. अभी निकालेंगे. देखो ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है. माइनस क्यू के लिए फोर्स इस तरफ था. As this charge is minus q, therefore electric field is opposite to the electrostatic force. Electric field is opposite to the force. समझ में है कि नहीं? यहीं पे भी वही आया था सेकंड केस में. देखो फोर्स इस तरफ आ रहा था. As this movable charge is negative, electric field is what? Opposite to the force. अरे समझ में आया? हेलो. Sir, this has nothing to do with main source charge. This is nothing to do with the main source charge. So I can write one summary here. Yes, you understood properly. I can just what? Write a summary here. देखो, this movable charge either positive or negative, whatever may be the movable charge, always electric field due to plus q charge is always away from the source charge. Look here. अरे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव दो सोर्स चार्ज पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. एंड ये व्हाट? मूवेबल चार्ज चाहे प्लस क्यू या माइनस क्यू हुआ, ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द व्हाट? नेगेटिव चार्ज. समझ में आ रहा है? यहीं पे एक समरी हम लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. समझ में आया सभी को? अरे सभी को समझ में आया? हेलो. ये फिगर से क्या Yes, मिलता है? Yes, sir. अरे फिगर से क्या मिलता है? Yes, एक sir. समरी मिलता है. क्या समरी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. लिखो, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है. लिखो, राइट ऑन दिस स्टेटमेंट. लिखो,
फ्रॉम द above डायग्राम कर दिए सर सभी? इसे नोट के अंदर लिखेंगे। हाँ, नोट के अंदर ही लिख रहे हैं ये डायग्राम, और नोट से ही कंटिन्यू हो रहा है। डायग्राम ड्रॉ करो पहले। डायग्राम सब ड्रॉ कर दिए क्या? Yes. डायग्राम नहीं सर एक इंपॉर्टेंट मिनट है। सर। ओके ओके, ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद ये बोलो। Sir, if movable charge is positive, हाँ, electric field and electrostatic force Force, will in the same direction. direction, And yes, if yes. movable charge is negative, electric field and electric in the opposite direction. opposite direction, yes yes yes. If movable charge is negative, हाँ, yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर अपोजिट। देखो, नेगेटिव मूवेबल चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इधर गया था तो फील्ड इधर गया, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है तो फील्ड इधर है। समझ में? इफ मूवेबल चार्ज इज नेगेटिव, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर। अंडरस्टैंड दिस? And if the main source charge is negative, the electric field is towards it. Towards the source charge. Towards Main the source source charge. charge, capital Q. Yes, Yes. yes. That means Capital what? Q. Yes, that means what? The direction of electric field is independent of this movable charge now. It only depends on the sign of the source charge. अगर source charge positive है तो direct हम लिख सकते हैं electric field is always away from the source charge. If source charge is negative, the electric field is always toward the source charge. ऐसे लिख सकते हैं। समझ में है?